Good morning. This is Rotarian Manju Fadke bringing to you Rotary Project Urja, in which we take you through 1 hour of well-structured session based on yoga and pranayama. Before we begin the session, let me just tell you a little brief about what Rotary International is. In Rotary International, there is a concept of Rotary Year which begins on 1st July and ends on 30th of June every year. Now, with every year, there is a change in the entire administrative machinery of Rotary International, right from Rotary International president to the last BOD member of any club. So there are 36,000 clubs across the world, and every club undergoes this change on 1st July of handing over the leadership to the next lot of leaders coming in. This happens so smoothly, and I can guarantee you nowhere else there is a transition which happens so smoothly. And why I say this, because I believe that Rotary International and all of us believe in a lot of professionalism. So every year the accounts are passed in the next year, which is somebody else's year, and of course they are audited, and budget is also presented before the year starts. So there is a lot of transparency, and that is what I believe is a true professionalism. Another way of we believe that we are professionals are that we use our professional skills for the betterment of the society. So somebody is good in speaking, then we take a lot of training programs for the youngsters. Somebody who is a doctor, he or she undertakes a lot of health checkup camps. Somebody who is good in or is a CA, looks after the accounts of the club. So somewhere we use our professional skills and professional expertise for the betterment of society, and that is why it is also a group of professionals coming together and doing good in the world. Another reason I believe that we are complete professionals is that we have two separate accounts. One account when our membership gets credited to, and the other account which is our trust, which is a charitable trust. There we take all the donations, and never ever any money that is taken in the trust by the donors gets utilized for any of the administrative purposes of the running of the club. So whatever the expenditure is required for running the club is all taken care of from the money that we pay as our membership fees, and this is done very professionally. And not only that, 100 rupees of donation is passed on to the beneficiary. I will go ahead and say that it's not 100 rupees. If you give to Rotary 100 rupees, we pass on to the beneficiary probably 110 rupees, because the money, the time, the traveling time, the petrol, or our skills that we use for carrying out any social service project, we do not charge for any of them. So your 100 rupees with our contribution added to that becomes 110, and that is why if you wish to give money to any organization or any NGO, I would say that Rotary is somewhere you should sincerely look at, because that's where your money gets multiplied rather than spent on the administrative expenses. So I believe that Rotary is a thorough professional organization. Coming back to the session of today, the session will be taken by Rotarian Nuru Goyal, and she is a passionate practitioner of yoga and pranayama. She is an industrialist, she is an artist, and she is really passionate about wanting to spread this well-being to all of you. So sit back and enjoy your session of yoga and pranayama today, and see you soon. Over to you, Neeru. नमस्कार सब लोगों को, मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है। अपने गुरु बाबा रामदेव जी को नमन करते हुए ये प्रोग्राम शुरू करेंगे। मैं प्राणायाम को बहुत प्रमोट करना चाहती हूँ, बिकॉज दैट इज मैजिकल एंड वन वे ऑफ गेटिंग कॉन्फिडेंट एंड कंपोज्ड एंड हेल्दी। आज का जो सेशन है वो डाइट पे ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग, लेकिन ये हमने 5 सीक्वेंस में बांधा है। प्राणायाम सेम है,
हाइट पे ज़्यादा बात करेंगे। 5 जो सीक्वेंस है उसमें एक बेसिक सीक्वेंस है, उसके बाद हम इंटरनल सिस्टम के बारे में बताते हैं सेकेंड संडे को। थर्ड में हम लोग ये बताते हैं कि किस तरह से प्राणायाम, प्राण क्या होता है और कैसे हमें इंटरनली उसको सोचना है, समझना है। चौथे उसमें डाइट बताई जाती है और 5वें सीक्वेंस में हम लोग ध्यान मग्न होके ये प्राणायाम करते हैं। आप आज जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो इस चौथे सीक्वेंस में जुड़ रहे हैं, लेकिन आप सीक्वेंस में यानी कि लगातार साइकिल में अगर देखते जाएंगे तो एवरीथिंग विल बी कवर्ड। बेसिक चीज़ ये है कि आपने मैट पर बैठना है, ज़मीन पर नहीं बैठना है, हवादार जगह पर रहना है, ऑक्सीजन पूरी मिलनी चाहिए उस जगह, सुबह का समय ज़्यादा अच्छा रहता है। हम धीरे धीरे ये 5 सीक्वेंस में आपको प्राणायाम क्या है नॉलेज वो दे देते हैं जो कि आपको समझना है, लेकिन प्राणायाम की जो क्रियाएं हैं वो सेम ही रहती हैं। तो अभी हम प्राणायाम ओमकार से शुरू करेंगे। आपने मुद्रा लगा के बैठना है, मुद्रा कैसे लगानी है, बैठना कैसे है, वो सब हम बेसिक साइकिल में आपको बता चुके हैं, लेकिन आप फिर भी यहाँ पर हम बताते हैं कि सुखासन में बैठिए, वज्रासन में बैठिए या पद्मासन में बैठिए या आप चेयर पर भी बैठ सकते हैं। मुद्रा में आप आज के दिन ध्यान मुद्रा लगाइए, बाकी मुद्रा बाद में एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन आज अगर आप ध्यान मुद्रा में बैठते हैं पूरा टाइम तो ठीक है। जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है, आज के दिन ज्वाइन किया है, वो आँख खोल कर प्राणायाम करेंगे, लेकिन जो पहले से जानते हैं वो लोग आँख बंद करके ध्यान पूर्वक प्राणायाम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ओमकार, और यहाँ पर ओमकार कहने से पहले एक बात और मैं ध्यान दिलाना चाहूँगी कि जो लोग अस्थमा के मरीज़ हैं या जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है वो ज़रा बहुत जोश में आके प्राणायाम स्टार्ट नहीं करें, उनको बहुत धीरे धीरे स्टार्ट करना है। हालांकि अल्टीमेटली प्राणायाम ही उनको ठीक करने वाला है। तो जितने भी डायबिटीज़ के लोग हैं या आपको ऐसी कोई क्रॉनिक बीमारी है तो धीरे धीरे स्टार्ट करिए। आपको जब आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी सांस लेने की या कैपेबिलिटी में आपको खुद पता चलेगा कि आप ज़्यादा देर तक कर सकते हैं तो आप तब बढ़ाते जाइए। बीच में जो लोग नहीं कर पा रहे हैं या थक जाते हैं वो लोग रेस्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 3 ओमकार से। ओमकार यानी कि अ, उ और म। आपको ये पूरा इंटरनली फील करते हुए ओमकार करना है। 20% अ, 60% उ और 20% म। चलिए अब स्टार्ट करेंगे सूर्य नमस्कार से। सूर्य नमस्कार से फ़ायदा ये होता है कि एक तो वार्मिंग अप हो जाती है, इसके अलावा हमारी दोनों नॉस्ट्रिल खुल जाती हैं, यानी कि हम प्राणायाम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो खड़े हो जाएंगे। 2 सूर्य नमस्कार मैं आपको बताऊंगी, ध्यान से देखिए कैसे करना है। हम ये 12 स्टेप में करते हैं। 12 स्टेप में जो लोग सूर्य नमस्कार नहीं कर पा रहे हैं वो भी खड़े होके कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करिए, जहाँ तक होता है वहाँ तक करिए, जिससे कि आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिले और धीरे धीरे प्राणायाम करने की भी ताकत आ जाएगी। आप स्टार्ट तो करिए पर 12 नंबर्स में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। 1 गहरी सांस, 2 3 2 टचिंग, 4 1 लेग बिहाइंड, हम लेफ्ट लेग
पीछे लेकर गए, उसके बाद दूसरी लेग स्ट्रेट रहना है, फिर धीरे से घुटने टेक देने हैं और ना अपना माथा और नाक जमीन पर लाना है, देखिए। और उसके बाद 7 पे इस तरह से भुजंगासन। उसके बाद हम लोग पर्वत आसन करेंगे, एड़ी टिका देनी है या कोशिश तो करनी है। और उसके बाद लेफ्ट लेग ही आगे ले आएंगे। लेफ्ट लेग एक बार पीछे गया था और एक बार अब आगे आगे। इसको हम दोनों हाथों के बीच में लेकर आए हैं। वो इतना नहीं होगा जो लोग नए शुरू कर रहे हैं, लेकिन उससे डरना नहीं है। जहां तक भी आपकी लेग आ पाती है वापस, वहां तक आप करें। अभी दूसरी तरफ मैं दिखाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें सांस को भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर आपको बहुत अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा हो ये जूम कैमरे में, तो आप गूगल पे जाइए और यूट्यूब पे जाइए। उसमें आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सूर्य नमस्कार ठीक से कैसे करना है। अभी हम स्टार्ट करेंगे पहला प्राणायाम भस्त्रिका। सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि जो लोग नए ज्वाइन हो रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं उस पर ध्यान कम दे, भले पूरा जो भी देना है, लेकिन सीक्वेंस को याद करते ही सीक्वेंस को याद करने की कोशिश करें। वो याद करते ही सब चीज़ें आसान लगने लगती हैं। तो पहला प्राणायाम है भस्त्रिका। गहरी सांस लेनी है और गहरी छोड़नी है। ये हम यहाँ पर 5 मिनट करते हैं। हल्की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन इतना टेंशन में नहीं आना कि आप लोगों को के माथे पे, चेहरे पे दिखाई दे। हल्की सी हंसी, ध्यान से गहरी सांस लेनी है, रुकना नहीं है और लगातार लेनी है। लगातार ऑक्सीजन आपका अंदर जाना चाहिए। ये है भस्त्रिका प्राणायाम, रक्त शुद्धि का प्राणायाम है। इससे जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिलता है उससे रेड सेल्स बनते हैं और वो रेड सेल्स ही रक्त शुद्धि कहलाती है और उससे ही हमारे शरीर को पूरी ताकत मिलती है। हमारे कोने कोने के सेल्स खुल जाते हैं। तो गहरी सांस फिर से लेंगे, भस्त्रिका। हल्की आवाज। अपने पोस्चर की तरफ खुद ध्यान देना है क्योंकि आप अपने वॉचमैन खुद हैं। कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, कमर में जरा भी झुकना नहीं है। सब लोगों ने अपनी सांसों की तरफ ध्यान देना है। सांस जितनी लंबी आप सांस इनहेल कर रहे हैं उतना ही एक्सहेल करनी है, उसी लेंथ में एक्सहेल करनी है। अगर आप थक गए हैं तो बीच में रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम 1 घंटे का प्राणायाम लेते हैं तो हम लोग 5-5 मिनट ये करते हैं। लेकिन जब आपको सीक्वेंस याद हो जाए, इसका मतलब आपने 5 सेशन तो ज़रूर अटेंड किए हैं। उसके बाद आप ये 3 प्राणायाम है, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, इनकी टाइमिंग्स बदल के 10 मिनट कर सकते हैं।
अभी हमारे 5 मिनट पूरे हुए, हमने भस्त्रिका प्राणायाम किया है। भस्त्रिका प्राणायाम के बीच में, यानी कि हर प्राणायाम के बीच में एक हम शॉर्ट क्रिया करते हैं, यानी कि सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम से क्या होता है, ये हल्के फुल्के आसन है जिससे कि आपका पूरा बॉडी खुल जाता है, आपको रेस्ट भी मिल जाता है और आप थोड़ा सा जॉइंट्स, जो हमारे ये जॉइंट्स हैं, ये अपने पैर की उंगलियों में है, हाथ में है, रिस्ट में है, कोहनी है, कंधे है, गर्दन है, सब जॉइंट्स पे कैल्सिफिकेशन रोज होता रहता है। लेकिन उस कैल्सिफिकेशन को हटाने के लिए ये शॉर्ट क्रियास बहुत काम आएंगी। तो हम ये शॉर्ट क्रिया करेंगे, दोनों पैरों को जोड़ के तितली आसन। इससे यहाँ का जो जॉइंट है, जो कि हमारे नीचे के हिस्से से ऊपर के हिस्से को जोड़ता है, ये खुलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इसमें ब्लड फ्लो ठीक से नहीं होता या बाकी सिक्रीशंस जो हमारे बॉडी में है, जो मिस्ट्री है, वो अगर ठीक से फ्लो नहीं होते तो हमारे को बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। तो ये हमारा तितली आसन हो गया। तितली आसन में आप देख रहे होंगे कि मेरी आवाज़ आती है। अगर सबकी आवाज़ नहीं भी आ रही तो कोई डरने की बात नहीं, धीरे धीरे जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, तो आप लोग भी मेरी तरह करने लगेंगे। अब मैं आपके सामने पद्मासन में बैठूंगी दूसरा प्राणायाम करने के लिए। दूसरा प्राणायाम हमारा है कपालभाति। कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जिसको रॉयल प्राणायाम बोला गया है। रॉयल प्राणायाम यानी कि हर रोग के लिए ये जो भी सेशन है ये होलिस्टिक है, यानी कि आपको हर बीमारी में ये काम आएगा और वेलनेस के लिए है। मैं किसी खास बीमारी की तरफ फोकस नहीं कर रही हूँ, इट इज़ वेलनेस प्रोग्राम और आपको होलिस्टिकली इसको करना है। पूरे प्राणायाम फायदा ही देते हैं, लेकिन कपालभाति और अनुलोम विलोम ये दो मेन रॉयल प्राणायाम है जो कि हर रोग को ठीक करने के भी काम आते हैं। तो कपालभाति कैसे करेंगे, आप इमेजिन करिए कि यहाँ पर कोई मच्छर या मक्खी बैठी है और आपको उसको नाक की हवा से भगाना है। तो इस तरह से आप स्टार्ट करेंगे। आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। इसमें मैं लेने की, आप लोग करते रहिए, आप लोग रुकिए मत। जब मैं बोल रही हूँ तो आप लोग करते रहिए उसको। ये जो प्राणायाम है इसमें जब हम बाहर हवा छोड़ते हैं तो अंदर लेने की कोशिश नहीं करते, वो खुद का खुद अपने अंदर आती है। यानी कि हमारे जितने वेल्व्स हैं वो खुद काम करते हैं, नेचर अपना काम खुद करती है, इसलिए घबराइए मत। सिर्फ छोड़िए, सिर्फ छोड़ने की तरफ फोकस करिए। इस प्राणायाम के साथ अगर आप डाइट पे थोड़ा कंट्रोल रखेंगे और इस प्राणायाम को 15-20 मिनट करेंगे तो ज़रूर वेट लॉस भी होगा। तो इस तरह से ये प्राणायाम हर एक को फ़ायदेमंद है। इवन जो लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है या डायबिटीज़ है या ऑफ कोर्स प्रेग्नेंट लेडीज़ इसको नहीं करेंगी, और अगर करेंगी तो बहुत धीरे से करेंगी, बहुत धीरे से करेंगी। करने में कोई हर्जा नहीं है, पर जोश में नहीं करना है, बहुत धीरे करना है। प्रक्रिया वही रहेगी, जैसे देखिए तो इस तरह से आप करेंगे या उसको छोड़ दीजिए। लेकिन ब्लड प्रेशर के लोग कर सकते हैं, धीरे धीरे वो भी करेंगे, वो भी धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट फिर से करना शुरू करिए। अदरवाइज अगर आपको कोई रोग नहीं है तो आप जिस स्पीड से मैं कर रही हूँ, यानी कि 1 सेकंड में एक बार, और इसी फोर्स के साथ आप ये प्राणायाम करें।
ये जो प्राणायाम आप लोग कर रहे हैं, करते रहिए, आप लोग करते रहिए। मैं आपको सिर्फ उसके फायदे बता रही हूँ कि आज के आज, ऐसा नहीं है कि 1 महीना आप करेंगे तब उसके फायदे नजर आएंगे। आज के आज आपको पता चलेगा कि यू आर मोर एंथुजियास्टिक, आपको कोई आलस नहीं आ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, आप कुछ क्रिएटिव हो गए हैं, ज़्यादा आपका मस्तिष्क काम कर रहा है। आज आपको अपने अंदर ये चेंज महसूस होगा अगर आप ये प्राणायाम ठीक से करेंगे। पाँच मिनट हमने ये प्राणायाम किया है। आप एक पतला तकिया भी अपने नीचे लगा सकते हैं, उससे कमर और सीधी हो जाती है। कमर को सीधी रखना हर समय ज़रूरी है। अब हम लेग एक्सरसाइज करेंगे। लेग एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको ये जॉइंट सब कैल्सिफिकेशन अपने को हैंडल करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 roll it 1 2 3 4 5 पूरा जीरो बनाना है। रिवर्स 2 3 4 5। अभी ये जो हमारा गैप आ जाता है बैठते हुए, उसको नीचे टच करना है, ऊपर नहीं लाना है, नीचे टच करना है। इट इज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जो कि आपको पूरे जोश से करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके अलावा ये जो टोज है आपके, इनमें भी 2 जॉइंट्स हैं आपके, उसको ध्यान में रखते हुए पूरी फोर्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो हमने ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस करी अपने पैर के जॉइंट्स को खोलने के लिए। अब हम एक दूसरा प्राणायाम करने जा रहे हैं, उसका नाम है बाह्य प्राणायाम एंड अग्निसार। बाह्य प्राणायाम कैसे होता है? जो लोग नए आए हैं वो आज के दिन सिर्फ मेरे को देखिए, जो पुराने लोग हैं वो मेरे साथ करिए। गहरी सांस छोड़िए। अभी तीनों बंद लगा लीजिए। तीनों बंद में थोड़ी नीचे गर्दन पे लगानी है, पेट को पूरा खींच लेना है नाभि से, और मूल बंद एनस को खींच लेना है और बैठ जाना है। ये पूरा का पूरा बंद हमने लगाया हुआ है, सांस नहीं चल रही है, सांस को रोका हुआ है। अभी सीधे हो जाइए, गहरी सांस छोड़िए। फिर से तीनों बंद, जलंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद। तीनों बंद जोर से लगा लीजिए। सीधे हो जाइए, गहरी सांस छोड़िए। फिर से तीनों बंद लगा के बैठेंगे। सीधे हो जाइए। अभी हम इसी प्राणायाम के अंदर एक बाह्य प्राणायाम है और एक अग्निसार है। अग्निसार मतलब अपने नाभि से हमें पेट आगे पीछे करना है। तो फिर से मेरी तरफ देखिए और करिए, गहरी सांस छोड़िए। और अभी तीनों बंद लगा लीजिए और उसके बाद पेट हिलाना शुरू करिए। ये डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है, पूरे के पूरे इस एरिया के लिए ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। अभी सीधे हो जाइए, गहरी सांस छोड़िए। तीनों बंद और फिर पेट को खींचना है अंदर बाहर।
सांस लेना नहीं है, सांस को रोक के रखना है। सीधे हो जाइए, गहरी सांस छोड़िए। सो इस तरह से सीधे हो गए हम लोग और हमने 3 प्राणायाम कंप्लीट किए। 3 के बाद अब हम जो प्राणायाम वो करेंगे, वो सूक्ष्म क्रिया करेंगे, वो हाथों के लिए है। हाथों पे हमारे बहुत सारे जॉइंट्स हैं, उंगलियों में बहुत सारे जॉइंट्स हैं, तो सबके लिए जो एक्सरसाइज है वो पहले ऐसे मुट्ठी रख लीजिए, फिर धीरे से इसको नकल्स को जोड़िए, जोड़िए नकल्स को, इसको आपकी रिस्ट पे ये पूरा का पूरा प्रेशर देगी। अपना हाथ बिल्कुल सीधा रखना है, देखिए इस तरह से पूरा सीधा रखिए। अब रोल करिए, 1 2 3 4 5, रिवर्स 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, रिवर्स 2 3 4 5। अभी रिस्ट पकड़ लीजिए, आप रिस्ट पकड़िए, एडजस्ट कर, यस, इस तरह से रिस्ट पकड़िए, अपने सीधा रहना है और इसको पीछे लेकर जाइए, जितना ज्यादा पीछे ले जा सकते हैं, जितना ज्यादा पीछे ले जा सकते हैं उसको पीछे ले जाइए। गहरी सांस और इसको एक तरफ खींच लीजिए, पुल इट, एक तरफ, गर्दन सीधी रहेगी, कंधे पे सिर्फ प्रेशर आएगा और फील करिए इसको। अभी सेंटर, गहरी सांस, अब इधर की तरफ खींचिए, इससे आपके कंधे बिल्कुल खुल जाएंगे, कभी भी फ्रोजन शोल्डर्स की तो नौबत ही नहीं आएगी। सेंटर, गहरी सांस, फिर से पुल इट हार्ड, बट आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। सेंटर, गहरी सांस, ये 2 बार हमने किया है। अब ये बैठ जाएंगे, 1 2 3 4 5, रिवर्स 2 3 4 5। अब हम चक्की करेंगे जिससे कि हमारे मिडरिफ की भी एक्सरसाइज हो जाए। इस तरह से पैर फैलाकर पूरी तरह से जितना आपका हो सकता है, और हम 1 रोल करेंगे, 2 3, हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, कोहनी मुड़ेगी नहीं, पीछे झुकाइए, अगर आपके हाथ मुड़ रहे हैं तो ध्यान दीजिए। रिवर्स 2 3 4 5, फिर से बैठ जाएंगे। अब हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम, जैसा कि मैंने बताया, ये रॉयल प्राणायाम है और ब्लड प्रेशर के लोगों के लिए, हार्ट की प्रॉब्लम जिनको है उनके लिए, सभी के लिए वैसे तो, लेकिन उनके लिए खास अच्छा है क्योंकि इससे हमारे को एक कोई पीसफुलनेस मिलती है। यानी कि आप सोचिए कि पूरे शरीर में आपके एक पाइपलाइन है और उस पाइपलाइन के थ्रू ब्लड भी जा रहा है, बहुत सारे न जाने कितने सिक्रीशन जा रहे हैं, लेकिन उसमें अगर ब्लॉकेज आया तो वो सारा सिस्टम रिवोल्ट करने लगता है और बीमारी में बदल जाता है। तो हमको ये कहा जाता है कि अगर ये प्राणायाम हम काफ़ी देर तक करें विद कपालभाति तो हमारे हार्ट के ब्लॉकेज भी 3 4 5 6 महीने में खुल जाते हैं। सो ये एनीवे मैं कोई क्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें ये 2 उंगलियाँ और ये अंगूठा, इससे हम करेंगे। राइट हैंड है हमारा, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, गहरी सांस लेंगे, फिर दूसरी तरफ की नॉस्ट्रिल बंद करके ऑपोजिट साइड से छोड़ देंगे, फिर यहीं से सांस ले लेंगे, ऑपोजिट साइड से छोड़ेंगे, यहीं से सांस ले लेंगे,
ऑपोजिट साइड से छोड़ेंगे। ऐसे ही करते चलिए। लंबी सांस लेनी है, अप्रोक्सीमेटली 15 काउंट या आपके 2.5 सेकेंड। 2.5 सेकेंड लंबी इनहेलिंग और 2.5 सेकेंड लंबी एक्सेलिंग कम से कम होनी चाहिए। आप अपने साथ एक घड़ी रखिए जरूर, जिससे आपको काफी अंदाज होगा कि आपको कितना टाइम क्या करना है, पर धीरे धीरे ये आदत पड़ ही जाती है। ये अंदाज आ जाएगा आपको। गहरी लंबी सांस लेनी है, रुकना नहीं है कहीं पर भी, बहुत शांति से। इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी होता है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी ठीक होती है। सांसों पे ध्यान देना है। मेंटली आपको इस प्राणायाम में, यानी कि पूरे समय आपको अपनी सांसों पे ध्यान रखना है, अपनी पोस्चर पे ध्यान रखना है। हल्की सी आवाज आनी चाहिए, सांस छोड़ने की भी और सांस लेने की भी। छोड़ देंगे। यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है कि जो लोग नए शुरू करते हैं उनकी दोनों नॉस्ट्रिल खुलती नहीं है। जब आप करने लगेंगे तो आपकी नॉस्ट्रिल्स में बैलेंस आ जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपका एक नॉस्ट्रिल बंद है तो आप देखिए, अगर मान लीजिए आपका ये नॉस्ट्रिल बंद है सीधे हाथ वाला, तो आप इस तरह से उल्टे हाथ पे सहारा लेके लेट जाइए, इस तरह। और थोड़ी देर में आप नोटिस करेंगे कि ये नॉस्ट्रिल आपका खुल जाएगा। इसी तरह से अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड का नॉस्ट्रिल बंद है तो आप ऑपोजिट तरीके से लेट जाइए और थोड़ा आधा मिनट 1 मिनट में आपका ये नॉस्ट्रिल खुल जाएगा। और थोड़े दिन के बाद तो जब आप लगातार इसको करने लगेंगे, प्राणायाम को अपना लेंगे, तो जुकाम खांसी तो आपको होगी ही नहीं। मतलब आपका कोई नॉस्ट्रिल बंद नहीं होगा, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जिससे आपको मेडिसिन खानी पड़े, कोई फ्लू नहीं होगा। छोटी मोटी बीमारियां तो हम तक आती ही नहीं है। अब हम नेक एक्सरसाइज करेंगे। ये हमारी फिर से शॉर्ट किया है। हाथ को माथे पे रखिए, गहरी सांस लीजिए और हाथ से माथा, माथे से हाथ पुश करिए। अब आप टॉप ऑफ द हेड पर रखिए हाथ अपने, ऐसे उसी तरह से गहरी सांस पुश करिए। बैक, गहरी सांस पुश। चिन पर हाथ रखिए, ठीक इस तरह से, गहरी सांस पुश।
अब आपको टेम्पल पे हाथ रखना है, कान और आंख के बीच में इस तरह से हाथ रखिए, गहरी सांस, पुश विथ फुल फोर्स। अभी दूसरी तरफ गहरी सांस, पुश, अब हम रोल कर लेंगे, डाउन, साइड, बैक, साइड एंड डाउन। फिर से ऑपोजिट, रिवर्स। इस तरह से हमने रोल कर दिया। ये गले गर्दन की एक्सरसाइज आज के ज़माने में जब हम सारे टाइम फ़ोन पर रहते हैं, कंप्यूटर पर रहते हैं, लैपटॉप पर रहते हैं, तो उस टाइम के लिए ये बहुत ज़रूरी है। एपिडेमिक की तरह हमारा सर्वाइकल प्रॉब्लम फैलता है जो कि एक ना एक एज में आपको घेर लेगा, लेकिन ये आप करते रहेंगे तो आपको कोई नेक की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम एक और प्राणायाम करेंगे, उज्जाई। उज्जाई थोड़ी सी ट्रिकी है, जो नए लोग हैं वो पहले देखेंगे, बाकी पुराने लोग कर सकते हैं। इसमें थोड़ी खांसी आती है। इसको हमें गले को यानी कि थ्रोट को कॉन्ट्रैक्ट करके नाक से सांस लेनी है और आवाज करनी है, और उसके बाद तीनों बंद लगा के बैठ जाना है। देखिए कैसे। और फिर एक नॉस्ट्रिल बंद करके छोड़ देंगे। फिर से एक बार। छोड़ दीजिए। एक बार फिर से ध्यान से देखिए। छोड़ दीजिए। अभी ये जो एक्सरसाइज है गले की, आप बच्चों को भी देखते होंगे कि हमारी जितनी फ्लू की प्रॉब्लम है या कुछ है तो वो थ्रोट से शुरू होती है। तो थ्रोट के इन्फेक्शन को बहुत कंट्रोल करेगी, और जो लोग गाना गाते हैं उनका गला भी ठीक हो जाएगा, उनके गले में एक अलग सी ताकत आ जाएगी। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको साधें। लेकिन अगर आप लंबी सांस नहीं ले पा रहे हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। शुरू में प्रैक्टिस के लिए आप इस तरह भी धीरे धीरे करके खांसी रोक सकते हैं, और एकदम से आप अनकंफर्टेबल नहीं हो इस बात का ध्यान रख सकते हैं। अभी हम 3 मेडिटेशनल प्राणायाम करेंगे। देखिए, मेडिटेशन देखने में बहुत ऐसा लगता है कि सिंपल है, लेकिन देखा जाए तो मेडिटेशन करना यानी कि जो हम कर रहे हैं उसी पर ध्यान देना, उसी पे मन को टिकाना और उसको पूरी एकाग्रता से करना, वो बहुत मुश्किल होता है। तो इसकी सिद्धि करिए। ये 3 प्राणायाम हैं। जो नए लोग हैं वो आज देखेंगे किस तरह कर रहे हैं, पुराने लोग स्टार्ट कर सकते हैं। 3 उंगली आंख पे रखनी है, 1 उंगली भाव के ऊपर रखनी है, कान को बिल्कुल बंद कर देना है, जीभ को फोल्ड कर लेना है और अंदर ही अंदर उहार करना है 3 बार। अभी आंखें बंद रखिए, ओंकार करेंगे। ओम
हम शांत बैठ जाएंगे बिल्कुल। सांसें गहरी पर आवाज जरा भी नहीं। शांति से सांस गहरी लीजिए पर आवाज जरा भी नहीं। अब हाथ ऊपर ले जाइए, दोनों हाथ ऊपर ले जाके रब करिए और ऊर्जा पैदा करिए और इसी ऊर्जा को अपने ऊपर डाल दीजिए। ये हमारे 5 प्राणायाम 8 प्राणायाम पूरे हुए, जिसमें कि 5 हमारे बेसिक प्राणायाम हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं और 3 हमारे मेडिटेशनल प्राणायाम हैं। अब हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन इस तरह से लगाएंगे। जो लोग वज्रासन नहीं लगा पा रहे हैं वो अपने अपने हिसाब से बैठ जाएं। अब हम मंडूकासन बताएंगे क्योंकि वो डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए रामबाण की तरह काम करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छे हैं। और आयुर्वेद में कहा गया है कि जितनी भी बीमारियां पैदा होती हैं वो पेट से शुरू होती हैं। तो ये आपको पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए करना है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करना है, इसलिए हमने इसको इसमें शामिल किया है। तो पहले इस तरह से ऐसे नहीं, ऐसे आप एक लाइन बनाइए, नकल टू नकल जोड़िए और उस लाइन को नाभि पे रख लीजिए, नाभि की सीट पे बिल्कुल। हाँ, उसके बाद आप गहरी सांस लेंगे और डाउन, छोड़ते छोड़ते सांस को पूरी तरह से निकाल देंगे, पूरी तरह से निकाल के जहां आपकी चेस्ट नीज पे लग जाती है वहां रुक जाइए। गर्दन को सीधा रखना है, आईब्रोज के बीच में देखना है और कुंभक लगाना है। ऊपर आ जाइए गहरी सांस लेते लेते। अभी दूसरा है ये जो गहरा पोर्शन है हमारी हथेली का, उसको नाभि पे रखिए, दूसरा हाथ सपोर्ट करिए, फिर सांस छोड़ते छोड़ते नीचे चले जाए। ऊपर आ जाएंगे। अभी ये अंगूठे की दूरी पर मुट्ठी बना के रखना है, पेट के आगे बहुत प्रेशर नहीं देना है, सिर्फ पैडिंग की तरह रखना है। गहरी सांस और छोड़ते 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 नीचे आएंगे। ये हमारी इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। डायबिटीज वालों को जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा अगर वो इन तीनों मंडूकासन को कम से कम 10-10 बार करेंगे और सुबह शाम करेंगे। अभी चौथा मंडूकासन है, हाथ को ऊपर ले जाएंगे, कान से टच करेंगे, टच करते हुए और फिर नीचे झुकेंगे, लेकिन कान से अपने हाथ हटने नहीं चाहिए। आपको हिप्स से नीचे झुकना है, कमर से नहीं। हिप्स को नीचे ले जाना है और पूरी तरह से नीचे टिका देना है। ऊपर आ जाएंगे। अब इसी तरह से ऊपर आना है, कान से अपना हाथ हटना नहीं चाहिए। तो ये हमने 4 तरह के मंडूकासन किए, इसको हमें 3-3 बार करना है। यहाँ पर थोड़े समय की कमी है, आप मेरे सेशन के बाद भी अगर इसको दोबारा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आज हमें बहुत सारी बातें आपको बतानी है, डाइट के बारे में बतानी है, इसलिए हमने एक बार किया है। अब इसके बाद हम ये इस तरह से बैठ जाएंगे और सिंहासन करेंगे। सिंहासन जिसमें कि आपको आँख
को से यहाँ ऊपर की तरफ देखना है, सेंटर में यहाँ देखना है, जीभ को यहाँ थोड़ी से टच करने की कोशिश करनी है और सिंह की तरह आवाज निकालनी है। स्टार्ट करेंगे, गहरी सांस, ये आपकी फेशियल एक्सरसाइज है, जिससे कि आपके पूरे के पूरे चेहरे पे एक अलग रौनक आ जाएगी, एक खिंचाव आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये सहला लीजिए गर्दन, थोड़ा सा खराश पैदा होती है। अब हम हास्यासन करेंगे। हास्यासन में हम क्लैपिंग करेंगे, लेकिन इन पॉइंट्स पर इस तरह से प्रेशर देंगे कि ये हमारा एक्यूप्रेशर हो जाए। तो इस तरह से करते करते देखिए, ये भी टच करना है, ये भी टच करना है, ठीक है। यानी कि पूरी की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देनी है आपने। शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आकाश शांति, औषधय शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेधि शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू। आज का ये सेशन ख़त्म हुआ, लेकिन अब हम आपको डाइट के बारे में बताएंगे, क्योंकि कहते हैं कि जो कुछ हम पेट में डाल रहे हैं वो किस क्वालिटी का है, क्या है, ये हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। यहाँ मैं आपको कोई भी ऐसे मुश्किल बंधन में नहीं बांधूंगी। बहुत आसान तरीका सबसे पहले ये है कि आप अपने डाइट के बारे में कॉन्शियस रहिए, अवेयर रहिए कि मैं अपने अंदर ये जीभ के बाद गले के पार पेट में क्या डाल रहा हूँ, और क्या डाल रहा हूँ और कितना डाल रहा हूँ। इज इट गुड फॉर मी? जस्ट इतना कॉन्शियस रहेंगे ना, तो आपकी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मत खाइए, या आप नॉनवेज मत खाइए, या आप सिर्फ वेजिटेरियन ही अच्छा होता है, ऐसा मैं कुछ कहने वाली नहीं। मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगी कि आप अवेयर रहिए, आपको कैसा खाना खाना है, क्या ठीक रहेगा। आजकल तो गूगल पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। आयुर्वेद के सेक्शन में जाना चाहें कि वो क्या आपको प्रमोट करते हैं खाने के लिए, तो वो भी आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है, या जो मैं खाती हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ। इंटरनल सिस्टम एक बहुत सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, और इस सिस्टम में अगर आप ऐसा कुछ डालेंगे जो उसको सूट नहीं करता है, जिसमें उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, या जब बहुत वो परेशान हो जाता है, तो वो ठीक बात नहीं है। आपको बच्चे की तरह अपनी इंटरनल केयर करनी चाहिए। तो जैसे हम पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दें तो कैसा होता है, वो तो पूरा इंजन रिवोल्ट कर देता है, और हम मजबूरी में जाके उस पर हज़ारों रुपये भी खर्च करते हैं। लेकिन हमारा बॉडी ऐसा है जो जब तक चले चलता रहता है, और हम लोग अवेयर नहीं है तो वो बीमारी के वर्ष तक पहुंच जाते हैं। सो अवेयर रहिए। दूसरी बेसिक चीज़ इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारा ये पूरा बॉडी ये 70% लिक्विड है, यानी कि तरल है, और 30% सॉलिड है। तो उसी हिसाब से हमको अपना फूड चुनना है। फूड कैसे? अब कहाँ ऐसा होता है कि 70% वाटर हो, तो वो है वेजिटेबल एंड फ्रूट। वेजिटेबल फ्रूट्स को आप 70% के रेशियो में अगर खाने लगे तो वो तो आइडियल हो जाएगा। लेकिन आप 50% तो करिए, 50% भी आपने कर लिया तो बहुत अच्छा रहेगा। खाने के एकदम बाद पानी मत पीजिए, क्योंकि हमारे शरीर में जैसे ही हम कुछ मुंह से अंदर नीचे जाता है, वैसे एक जठराग्नि पैदा होती है, और वो डाइजेस्टिव पावर है हमारी। और लेकिन हम साथ में ही ठंडा पानी पी लेते हैं,
तो वो जठराग्नि शांत हो जाती है, जिसकी वजह से डाइजेशन पूरा नहीं हो पाता। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिए कि अपने मील के बाद आप पानी मत पीजिए, मील से पहले पी सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा। अब लाइट फूड कैसा, मैंने जैसा बताया ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की मात्रा होनी चाहिए, लाइट फूड खाना चाहिए अपने आप को। और आप सोच लीजिए जैसे कि देखिए, ताकत देने के लिए अपने को खाना भी बहुत ज़रूरी है, उससे ताकत मिलती है, लेकिन इतना ऐसा खाना मत खाइए कि जिसको पचाने में ही सारी ताकत चली जाए। यानी कि ताकत तो एक ही है, अब आप उसको डाइजेशन में लगा दीजिए, ये है अपने बहुत हैवी खाना खा के, या बैलेंस में रखिए कि वो डाइजेशन भी अच्छे से कर पाए और आपको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी भी दे, कुछ और काम करने के लिए, कुछ ज़्यादा क्रिएटिव होने के लिए, कुछ ज़्यादा मेंटल सोचने के लिए। तो इस तरह से जैसे हम एवरेस्ट पे चढ़ते हैं तो दिन पर दिन ऐसे गर्म कपड़ों का, जो गर्मी भी देते हैं लेकिन लाइट रहते हैं, हाँ, वही थ्योरी हमारी खाने के साथ है कि हमें पूरी ऊर्जा भी दे दे हमारा खाना और वो लाइट भी रहे, हमारे सिस्टम पे बहुत हैवी भी नहीं रहे। तो उसी तरह से आपको खाना खाना है। अभी आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग 2 टाइम खाने पे आ गए हैं, यानी कि एक बार सुबह एक बार शाम, या वो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आ गए हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? वो कहती है कि 16 घंटे कुछ मत खाओ, 8 घंटे की विंडो में जो खाना है खाइए। बहुत ज़्यादा परहेज़ कुछ नहीं है, लेकिन उसमें भी हेल्दी खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे, वो तो सीधी सी बात है। हेल्दी, नॉन हेल्दी क्या है? मैदा नॉन हेल्दी है, चीनी बहुत ज़्यादा खाना नॉन हेल्दी है, नमक बहुत ज़्यादा खाना नॉन हेल्दी है। तो नॉन हेल्दी बहुत सारी चीज़ें हैं, 5 चीज़ें, कम से 5-6 चीज़ें ऐसी सोच लीजिए कि जब भी मेरी टेबल पे आएंगी तो ये 5 चीज़ों को मैं ध्यान से खाऊंगा। मैं खाने के लिए बिल्कुल आपको मना नहीं कर रही, लेकिन ऐसा खाना खाइए जो आपको एनर्जी दे। खाना ऐसा होना चाहिए जो आपके शरीर के लिए हर समय एक सुंदर मेडिसिन का काम करे, तो ये आदतें पड़ जाती हैं। अब मैं क्या खाती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि मैं सुबह के टाइम खाना अवॉइड करती हूँ। सुबह का टाइम हमारा क्लेंसिंग टाइम है, क्लेंसिंग टाइम है। ब्रेकफास्ट को अवॉइड कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं होती ब्रेकफास्ट की, बेड टी की कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हल्दी वाला पानी पी के दिन की शुरुआत करिए। दिन की शुरुआत गर्म पानी थर्मस में भर के पहले ही रात को रख लीजिए, सुबह सुबह उठिए, बाथरूम में ही हल्दी रखिए, खाइए, उसका 1 चम्मच लीजिए और उसको पानी के साथ, गर्म पानी के साथ 2 गिलास पानी पी लीजिए। तो वो मेरी रूटीन बहुत अच्छी है, आप लोग ज़रूर अपनाइए, बहुत अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद मैं ना कोई बेड टी लेती हूँ और ना ही ब्रेकफास्ट लेती हूँ, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ जिनको 3 बार खाने की आदत है, मैं इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सुबह का ब्रेकफास्ट सिर्फ फ्रूट्स लीजिए, फ्रूट जूसेस लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, लाइट ब्रेकफास्ट रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। उससे आपको एक फीलिंग ऐसी होगी कि आपके अंदर एनर्जी भी है, लेकिन आप लाइट भी फील करेंगे। तो सुबह का ब्रेकफास्ट अगर आप फ्रूट्स का ले लें, ड्राई फ्रूट्स का ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसके लिए ये क्यों अच्छा है, क्यों नहीं, उसके लिए मैं आपको एक बुक बताती हूँ। मैंने बहुत सारी बुक पढ़ी हैं, लेकिन एक ही बुक है जिसकी वजह से मैं 25 साल से वही कर रही हूँ जो उस बुक में लिखा हुआ है, एंड इट इज़ वेरी नाइस। ये है फिट फॉर लाइफ, और ऑथर्स हैं डायमंड्स, मार्वे एंड मैरिलिन डायमंड्स। ये इनका फर्स्ट एडिशन, जो भी इस बुक का फर्स्ट एडिशन है, बहुत सारी बुक्स हैं इनकी, फर्स्ट एडिशन में आपको बेसिक थ्योरी मिल जाएगी कि किस टाइम क्या खाना चाहिए। हम सुबह को ब्रेकफास्ट की थ्योरी के साथ रहे हैं कि ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक किंग्स। मैं नहीं करती ऐसा, क्योंकि वो सारी मेरी एनर्जी ले लेता है। जब हम हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं तो सारी एनर्जी डाइजेशन में चली जाती है। इस बुक में वो बहुत अच्छे से समझाया गया है। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ मैं करती हूँ अपने घर में कि जितनी भी वेजिटेबल आती है, फ्रिज में जितनी वेजिटेबल है, वो उसमें से जो थोड़ी थोड़ी कुछ बच जाती है या अभी पुरानी भी हो जाती है या कोई ताज़ी भी हो, तो मैं सारी वेजिटेबल मिक्स करके उसमें
एक शेंगने की जो फली होती है, ड्रम स्टिक्स को काट के डालती हूँ और प्रेशर कुक, काफ़ी सारे पानी के साथ प्रेशर कुक कर लेती हूँ और उस पानी को मैं दिन में एक बार ग्लास भर के पी लेती हूँ। तो पूरे परिवार के लिए वो पानी बना के ही रखी कि एक बार जब प्यास लगे तो वो पी ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्का सा नमक डाल लीजिए उसमें, बहुत टेस्टी लगता है और बहुत ही एडवांटेजियस है। आपकी पूरी की पूरी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी उससे। और आपके फ्रिज में जो सब्जियां हैं वो भी सब कंज्यूम हो जाएंगी, तो मल्टीपल फ़ायदे हैं उसके। एक और थ्योरी है कि स्नैक्स बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे इंडियन स्नैक्स होते भी बहुत अच्छे हैं, उसको हम एक्स्ट्रा समझ के खा लेते हैं। आप स्नैक्स ज़रूर खाइए, लेकिन फूड में इंक्लूड करके खाइए ना। फूड के साथ जो आपका फूड का टाइम है, फूड ऐसा नहीं हो कि आप पूरा खाना भी खा रहे हैं और ऊपर से समोसा और स्नैक्स भी खा रहे हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है। तो सोच समझ के खाइए। इतनी क्वांटिटी में हमें खाना खाना ज़रूरी नहीं होता है। पेट बढ़ने लगे यानी कि सीधे खड़े हो रहे हैं और अगर आप पैर के पंजे नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब आपको थोड़ी सी अपनी डाइट कंट्रोल करना ज़रूरी है, यानी कि कम खाएं, थोड़ा सा कम खाएं अपने फिगर को। जिन लोगों को का मेटाबॉलिज्म हाई है और वो खा सकते हैं और ज़रा भी उनके ऊपर वज़न नहीं है, उनके लिए भी मैं इतना बताना चाहूँगी कि हेल्दी रूटीन ज़रूर अपनाइए, हेल्दी फूड ज़रूर अपनाइए। बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें, मैदा की चीज़ें, ये सब अपनी डाइट से हटा देंगे तो आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आयुर्वेद में डेयरी प्रोडक्ट को बहुत प्रमोट किया गया है, लेकिन मैं इस पे विश्वास नहीं रखती। शायद फिट फॉर लाइफ की थ्योरी में भी दूध बहुत माने नहीं रखता है, मिल्क। और आजकल जबकि गाय भैंसों को बहुत सारे इंजेक्शंस दे रहे हैं, उसको हेल्दी कैटेगरी में हम बिल्कुल भी नहीं ला सकते हैं। हेल्दी कैटेगरी है ही नहीं उसकी। तो हल्दी का पानी पीजिए, आप वेजिटेबल का पानी पीजिए, शाम को खाना लाइट रखिए थोड़ा सा, लेकिन टाइम के हिसाब से उसको 7-8 बजे तक डिनर अपना कर लीजिए। उसके बाद आपको 2 घंटे जगना चाहिए। खाते ही सो जाना ये ठीक बात नहीं है। खाते ही सोइए मत, आप बाकी सारे काम करिए और 2 घंटे के बाद सो जाइए। इतना गैप आप अपनी रूटीन में रखिए अपने डिनर के साथ ना। सुबह को उठ के बेड टी जो आप लेते हैं, टी में अपनी एक खासियत होती है, मैं मना नहीं करती, लेकिन लोग बाग बिना दूध के और बिना शक्कर के अगर वो टी लेते हैं तो वो मेडिसिनल वैल्यू वाली टी है, वो आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं।